Good morning, everyone, and welcome back to Data Structures Theory session. We are continuing doubly linked list. We have seen how we can have a backward path with extra previous pointer in a doubly linked list. So a doubly linked list which contains two pointers, one for forward link, other one for backward link, and because of it, we can actually traverse doubly linked list in both directions. We have also seen few benefits, drawbacks. The benefit is we can have or we can go backward from current place to previous place. We can jump in a single step, whereas it was not possible in singly linked list and it was a lengthy path in circular linked list, but here it is a single step. But the drawback is it requires extra pointer, it requires extra memory in each node. But when you have a large data, it doesn't matter. The only matters is what kind of operation you want and how much faster you want it to be done. So that's where doubly linked list helps us. We have seen how we can insert node in a doubly linked list. We have gone for a number of insert operations, and then we've also started delete operations here. So in a previous session, we have seen delete first. In a doubly linked list, if you want to delete your first node, then this is how you can delete it. Now let's have a look at delete last, and we'll see few one or two more delete operations on doubly linked list. So what do you think? What do we do if we want to delete a last node in doubly linked list? One common condition is always there. If your linked list is empty, nothing to delete, printf message and return. That's common. But in this case, what if you have only one node? What if your start is pointing to a node which happens to be the only node in linked list? The first node itself is the last node. And if you delete this node, then your linked list becomes empty. Now here it's going to be the special case, because when we delete this last node, linked list becomes empty. The other case may be you have more than one node and you can represent your linked list something like this, a doubly linked list, where you have first node previous pointer null, last node next pointer null, other pointers are properly managed, and all your nodes can have any data. So these are the two possibilities which we need to handle. And if we focus on these two possibilities, we want to delete the last node. Now let's think about what happens when we delete this last node. So in your first case, your start should become null because you have only one node and you are going to delete it. In second case, if you delete your last node, then second last node next pointer should become null. And that's the only change you have to do. But to make that change, you have to traverse your linked list. लास्ट नोड डिलीट करना है तो लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करोगे. प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को नल करना है तो प्रीवियस नोड भी आपके पास होना चाहिए. अब कैसे लोगे, विल सी दैट. अगर आपके पास लास्ट नोड है तो उसी के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस भी है, राइट. सो एक्स्ट्रा प्री पीटीआर पहले से लेके नहीं चलेंगे हम. प्रीवियस नोड का एड्रेस हमें प्री पॉइंटर से मिल जाएगा. So what we have to do here is we are going to traverse our linked list. पहले नोड से स्टार्ट करो और जब तक आपको लास्ट नोड नहीं मिलता है आप क्या करोगे, ट्रैवर्स करोगे. एंड वंस यू हैव योर टीआर, आप टीआर को फ्री करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले टीआर के प्रीवियस नोड पे
नेक्स्ट पॉइंटर को नल कर दोगे, उसके बाद टीआर फ्री करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो let's think about both the cases. If your start next is null, that indicates you have only one node. If that is the case, you simply free your first node and then you update your start equals to null. Now that's your first case. If that's not the case, then you go for the else part. Inside your else, you actually need to traverse your linked list. So we start with tr and we are going to traverse it. So while tr equals to tr next. कब तक ट्रावर्स करेंगे? टीआर का नेक्स्ट जब तक नल नहीं मिलता है तब तक आप ट्रावर्स करोगे. सो टीआर पॉइंट्स टू नेक्स्ट is not equals to null till that point or till that time you are going to traverse it. So आपका tr जो है वो लास्ट नोड पे रुक जाएगा. Now when you are at a last node, तो tr का प्री चेक करो, आपको प्रीवियस नोड देगा. उस प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में आप नल सेव करो. So pointer updated and then simply make your tr free. उसके बाद tr को फ्री कर दो. यस नेक्स्ट पॉइंटर में नल है, प्रीवियस पॉइंटर में सेकेंड लास्ट का एड्रेस. tr equals to tr points to next. Equals to is the assignment operator. वो क्या करेगा हर बार? राइट साइड जो भी है उसको लेफ्ट साइड डालेगा. राइट साइड क्या है? tr points to next. What it is? नेक्स्ट नोड एड्रेस. नेक्स्ट नोड के एड्रेस को आप कहां पे डालोगे? लेफ्ट साइड. व्हाट इज ऑन द लेफ्ट साइड? tr. तो आपने tr को अपडेट कर दिया नेक्स्ट नोड के एड्रेस से. When you say next pointer, it is always pointing the next node. अगर next node है तो उसको point करेगा, next node नहीं है तो वो null रहेगा. Yes, we can stop at a second last node depending on your condition. अगर second last node पे रुकना है आपको तो आप ये करोगे tr के next का next अगर null है तो रुक जाना है. Yeah, next pointer is pointing to the entire node. Previous pointer is pointing to the entire node. Remember, वो पूरे node को point करेगा. Which means I got your point now. आप ये पूछना चाहते हो कि ये जो previous pointer है, when I draw this arrow, तो क्या वो next को point करता है? No, it is actually pointing to the entire node. उसके पास नोड का एड्रेस रहेगा ना कि उसके मेंबर का. बिकॉज प्रीवियस, नेक्स्ट और डेटा ये तीन स्ट्रक्चर के मेंबर हैं. वी आर नॉट पॉइंटिंग टू मेंबर, वी आर पॉइंटिंग टू नोड. क्लियर नाउ? ओके. सो वी नीड एड्रेस ऑफ एंटायर नोड. So
this is the same algorithm. Let's go through it quickly. If your start is null, then underflow, nothing to delete. Otherwise, you focus on the special case where you have only one node. How do you check it? If start next is null, then you have single node. If you delete that node, make your start null and return. अगर एक से ज्यादा नोड है तो आप क्या करोगे? Well, you are going to traverse. You are going to repeatedly traverse your linked list until tr next becomes null. Tr equals to tr points to next. Now your ptr here is pointing to the last node जिसको आप free करना चाहते हो. But before you make it free, let's have the previous node मिल गया तो उसका next pointer access करूंगा. So I'm going to make a chain here. ptr points to pre जो मुझे previous node का एड्रेस देगा, उस एड्रेस को यूज करके मैंने again points to next किया, and that's the pointer, and I set null there. Correct. कर सकते हैं, but in that case your while loop condition will differ. That's what I said. अगर सेकंड लास्ट नोड पे रुकना है तो ट्रावर्स करते वक्त आपकी while कंडीशन बदल जाएगी. This will change कहीं ना कहीं तो चेंज करना ही पड़ेगा. दैट यू डिसाइड. Okay. Let me ask one more time. Do you have any doubt in this chaining part? Let's make it clear. Otherwise, it's going to confuse you a lot. क्या अभी भी किसी को डाउट है ये चेन करने में? ptr points to pre points to next, what it means? Online students, all these pointers are going to give you the address. Remember, अगर उस एड्रेस को आप इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड लिखते हो मतलब आप एड्रेस अपडेट करते हो. अगर उस एड्रेस को आप इक्वल्स टू के राइट साइड एक्सेस करते हो, विच मीन्स यू आर गेटिंग दैट वैल्यू. What is equals to? It is assignment operator, always assigns right value to the left side, right side to left side. Okay, so that's your delete last operation. Yeah, thank you, Dharam. Let us directly go for delete at position. Let's try direct algorithm, because after this I want to go for delete before in detail. Well, so as always, if your start is null, nothing to delete. Now we are talking about at position. If user gives you position 1, it's a special case, delete first. So आप वो भी पहले देख लोगे. If your position is 1, then you are going to update your start को second node पे लेके जाओगे, because first node को आप delete करना चाहते हो, तो आप start को update कर दो. अब first node जो है वो आपको कैसे मिलेगा? Well, आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले सकते हो, ptr equals to start.
और आप पीटीआर को फ्री कर सकते हो. नाउ दैट्स वन वे. अदर वे, you can directly free updated start जो सेकंड नोड है उसके प्रीवियस को. ये भी कर सकते हो आप. It's possible. Now remember, this is doubly linked list. तो सेकंड नोड के प्रीवियस पॉइंटर को आप नल करोगे. So if you want to use this thing, तो ये आपको पहले लिखना पड़ेगा. बिफोर यू अपडेट स्टार्ट प्रीवियस. स्टार्ट प्रीवियस को अपडेट करने से पहले उसको फ्री करो, बाद में अपडेट करो. अदरवाइज यू टेक एक्स्ट्रा वेरिएबल लाइक पीटीआर एंड देन मेक इट फ्री, वो भी चलेगा. एनीवे यू आर गोइंग टू टेक पीटीआर, क्योंकि अगर पोजीशन 1 नहीं है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्रैवर्स. अगर ट्रैवर्स करना है तो एक वेरिएबल आप वैसे भी लेने वाले हो. सो व्हाई नॉट टू टेक दैट पीटीआर एंड मेक इट फ्री. सो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इसको ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं बनाएंगे. वी विल सिंपली से दैट विल टेक वन पीटीआर जो पहले नोड पे रहेगा और उसको मैं फ्री कर दूंगा. सो दैट्स द स्पेशल केस. इफ योर पोजीशन इज 1, you are going to delete first node and you simply return. If that is not the case, then you are going to traverse your linked list. अब ट्रैवर्स करोगे बेस्ड ऑन अ पोजीशन, तो आपको काउंटर भी चाहिए. लेट्स टेक वन काउंटर. सो नाउ माय पीटीआर इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड, काउंटर इज 1 एंड द नेक्स्ट स्टेप इज आई एम गोइंग टू ट्रैवर्स. Now if you remember in singly linked list or even in singly circular, delete at position करते वक्त आप पोजीशन -1 तक ट्रैवर्स करते थे, राइट? क्योंकि प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना था. नाउ एट दिस प्लेस आप अप टू पोजीशन ट्रैवर्स करो, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रीवियस नोड का एड्रेस हर एक नोड के पास है. सो व्हाट विल डू हियर इज वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स आवर लिंक लिस्ट बेस्ड ऑन अ काउंटर. लेकिन हम कहां तक जाएंगे? पोजीशन -1 नहीं करना है. स्टिल इट इज लेस देन, ओके. सो एक नोड तो पहले रहेगा ही. व्हेन काउंटर बिकम्स इक्वल्स टू पोजीशन, हम टीआर को अपडेट नहीं करेंगे, तो टीआर रुकेगा एग्जैक्ट पोजीशन पे. एडिशनल कंडीशन, अगर काउंटर तक पहुंचने से पहले लिंक लिस्ट खत्म हो गया तो क्या? सो एडिशनल कंडीशन, पीटीआर शुड नॉट बी नल. ओके, so we are going to traverse ptr equals to ptr next every time we are going to increase our counter. So when you are done with this with this loop, your ptr is pointing to a node जिसको आप डिलीट करना चाहते हो. ptr वहां पे रहेगा जिसको आप डिलीट करना चाहते हो. लेकिन अगर आप ptr को डिलीट करते हो तो उसके प्रीवियस जो नोड है उसका पॉइंटर भी बदलेगा, उसके बाद जो नोड है उसका भी एक पॉइंटर बदलेगा, बिकॉज दिस इज डबली लिंक्ड लिस्ट. मतलब पीटीआर के पहले जो नोड है उसका भी एक पॉइंटर बदलने वाला है, और पीटीआर के बाद जो नोड है उसका भी एक पॉइंटर बदलने वाला है. वी आर गोइंग टू अपडेट इट. अब प्रीवियस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट करेंगे और नेक्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर. If this is the case and you want to delete this node, तो आगे वाले नोड का नेक्स्ट पॉइंटर बदलो और पीछे वाले नोड का प्रीवियस पॉइंटर बदलो. This is what we have to do. If this is your PTR, तो ये कौन सा नोड है?
पीटीआर का प्रीवियस नोड, और ये कौन सा नोड हो जाएगा? पीटीआर का नेक्स्ट नोड। अब प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना है और नेक्स्ट नोड के प्रीवियस पॉइंटर को अपडेट करना है। सो दैट्स व्हाट वी आर अपडेटिंग हियर। वो पॉइंट कहां पे करेगा? पीटीआर नेक्स्ट एंड पीटीआर प्री। वो दोनों पॉइंटर अपडेट करने के बाद आप पीटीआर को आसानी से डिलीट कर सकते हो। दैट्स योर प्रोसेस एंड यू आर डन विद दैट, देन यू रिटर्न। So that's why I'm saying draw your case always. जब ये ड्रॉ करते हो तो आसानी से समझ में आता है, right? That's delete at position. Now as I said, let's focus on delete before. Delete before डिटेल में देखते हैं। If your start is null, nothing to delete. वैल्यू मिलेगी ही नहीं, बिकॉज वी वॉन्ट टू डिलीट बिफोर गिवन वैल्यू। अगर लिंक लिस्ट खाली है तो गिवन वैल्यू कहीं पे है ही नहीं। इफ योर स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू अ नोड which contains that value, given value, existing value. अगर फर्स्ट नोड में आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू आपको मिलती है, देन इज देयर एनीथिंग बिफोर दैट? नथिंग. So these two are the cases where you simply print a message, nothing to delete. कुछ है ही नहीं डिलीट करने को, क्या करोगे? Right? If these two are not the case, तो आप existing value को सर्च करने के लिए ट्रैवर्स करोगे लिंक लिस्ट में. Now let's take that case. What if user gives you existing value 4? What if user gives you existing value 4? कौन सा केस बनेगा? सॉरी, डिलीट फर्स्ट वाला केस बनेगा. सेकेंड नोड में एग्जिस्टिंग वैल्यू मिलती है तो उसके पहले कौन सा नोड है? फर्स्ट नोड. तो ये कौन सा केस बनेगा? डिलीट फर्स्ट. जब भी आप डिलीट फर्स्ट करते हो, स्टार्ट को अपडेट करते हो. एंड हाउ टू डिलीट फर्स्ट, वी ऑल नो दैट. इसके अलावा कोई भी वैल्यू दे दे, राइट, इसके अलावा यूजर कोई भी वैल्यू दे दे तो आप ट्रैवर्स करके जाओगे उस नोड तक जहां पे आपको वो वैल्यू मिलती है, और उसके आगे वाला नोड आप डिलीट करना चाहते हो, तो उसके भी आगे जो नोड होगा उसका नेक्स्ट पॉइंटर बदलेगा. 2 स्टेप बैक. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू. आपको क्या करना है? पीटीआर को एग्जिस्टिंग वैल्यू तक लेके जाओ तो 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, या तो फिर पीटीआर को एग्जिस्टिंग वैल्यू के एक स्टेप पहले रोक लो तो एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे देखना पड़ेगा. डिपेंड्स ऑन यू. जो आपको चाहिए आप कर सकते हो. एंड इफ यूजर गिव्स यू समथिंग विच इज नॉट देयर तो आप ट्रैवर्सल प्रोसेस पूरा खत्म कर लोगे, फिर भी एग्जिस्टिंग वैल्यू मिलेगी नहीं. सो एट द एंड यू वांट टू प्रिंट अ मैसेज वैल्यू नॉट फाउंड. कैसे पता चलेगा? फ्लैग. well need not to have a flag actually. correct. अगर ptr ही null हो गया तो value not found.
अगर पीटीआर नल हो गया तो वैल्यू नॉट फाउंड, अगर पीटीआर नल नहीं हुआ तो आप कहां पे रुकोगे, जहां वैल्यू मिलेगी. So well, we need not to have a flag here. Okay, so let's think about it now. The first case, if start next is the second node, और अगर second node का data existing value है. Now along with this you also need to check that do you have second node. What if you have only one node? Right, so along with this you also need to check start next should not be null. तभी आप next के data को check कर पाओगे. Now if this is the case, क्या होगा? स्टार्ट को सेकंड नोड पे लेके जाओ, पहले नोड को फ्री करो, राइट, एंड सेकंड नोड के प्रीवियस पॉइंटर को भी नल करो. नाउ दिस इज डिलीट फर्स्ट. इफ दैट्स नॉट द केस तो आपको डेफिनेटली ट्रावर्स करना है. सो इन एल्स पार्ट यू ट्रावर्स, स्टार्ट से ट्रावर्स करो, पहले नोड का डेटा तो वैसे भी कंपेयर हो गया, सेकंड नोड से ट्रावर्स करो, सेकंड नोड का डेटा भी वैसे कंपेयर हो गया. आप अपनी ट्रावर्सल प्रोसेस थर्ड नोड से स्टार्ट कर सकते हो, बट लेट इट बी स्टार्ट हियर. While TR is not null, we are going to compare TR data. Now this is the case if you want to delete all befores. All before नहीं करना है, then TR null नहीं है और TR का डेटा भी existing value नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे. So TR equals to TR points to next. After this traversal, if your TR is null, print a message value not found. Otherwise आपको वो वैल्यू मिल गई है and your TR is pointing to that node. Now let's focus on that. Yes, we haven't decided yet. Let's think what happens in this case. So let's say user has given value 6. You start with your TR, 2 and 6 equal नहीं है, आगे बढ़ोगे. फोर एंड सिक्स इक्वल नहीं है, आगे बढ़ोगे. 6 and 6 इक्वल है, यू विल स्टॉप. सो एज ऑफ नाउ हमने जो कंडीशन लिखा है वो टीआर को कहां पे रोकेगा, जहां पे आपको वो वैल्यू मिलेगी. वेल उस केस में आपको क्या करना है, इफ योर टीआर स्टॉप्स एट 6 आपको डिलीट 4 करना है. वी वांट टू डिलीट बिफोर, so we want to delete value 4 node 4. अगर आप node 4 को डिलीट करना चाहते हो तो आपके पॉइंटर्स कौन से अपडेट होंगे, these two pointers are going to be updated. आपके पास सिर्फ TR है, you only have TR. TR का प्रीवियस एक्सेस करो तो आपको नोड 4 मिलेगा.
उसका और एक बार प्रीवियस एक्सेस करो तो नोड 2 मिलेगा और उसका नेक्स्ट आपको अपडेट करना है। टीआर प्री आपको 4 देगा, उसका भी प्री आपको 2 देगा और उसका नेक्स्ट आपको अपडेट करना। सो इट्स समथिंग लाइक टीआर जो 6 पे है, आप उसका प्रीवियस एक्सेस करो तो आपको 4 मिलता है, उसका भी प्रीवियस एक्सेस करो तो आपको 2 मिलता है और उसका भी नेक्स्ट आपको अपडेट करना है। नाउ that is what happens here if we go up to that existing value. काफी कॉम्प्लेक्स है and that's why what we do is we'll focus on the same fundament सिंगली लिंक लिस्ट में जो किया था। नेक्स्ट का डेटा चेक करो, अगर वो इक्वल है तो अभी रुक जाऊंगा, एक स्टेप पहले ही रुक जाऊंगा। So instead of comparing TR data, TR के नेक्स्ट के डेटा को कंपेयर करोगे, बट रिमेंबर TR next should not be null. TR next should not be null. और उस केस में आप यहां पे भी यही करोगे। If TR next is null, value not found. Now your TR will stop at your TR will stop at 4. 6 के पहले रुक जाएगा, 4 पे रुक जाएगा। अब थोड़ा इजी है, TR को ही डिलीट करना है। TR के प्रीवियस के नेक्स्ट को अपडेट करो, TR के नेक्स्ट के प्रीवियस को अपडेट करो, जो हमने यहां पे किया। सेम थिंग, वही तो किया था। TR PTR को डिलीट करना था तो आगे वाले नोड और पीछे वाले नोड को पॉइंटर को अपडेट किया। सेम थिंग वी वांट टू डू हियर। 4 को डिलीट करना है तो TR के प्रीवियस और नेक्स्ट में अपडेशन करेंगे। Now that becomes easy. Let's have a look at direct algorithm now. So if your start is null, linked list ही खाली है, underflow. अगर स्टार्ट का डेटा ही एग्जिस्टिंग वैल्यू है, देन देयर इज नथिंग टू डिलीट बिफोर, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो वो दोनों केस खत्म। उसके बाद और एक केस, अगर सेकंड नोड का डेटा एग्जिस्टिंग वैल्यू है, स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट्स टू डेटा इज एग्जिस्टिंग वैल्यू। सेकंड नोड का डेटा अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो आपके लिए वो बन जाता है डिलीट फर्स्ट। स्टार्ट को सेकंड नोड पे लेके जाओ। पीटीआर में हमने ऑलरेडी फर्स्ट नोड लिया है, सो हम पीटीआर को फ्री करेंगे और जो सेकंड नोड बना उसके प्रीवियस को नल करेंगे। दैट हैंडल्स योर डिलीट फर्स्ट। इफ दैट इज नॉट द केस देन वी नीड टू ट्रैवर्स। अच्छा चलो ट्रैवर्स करते हैं। सो वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स इट। वी हैव डिसाइडेड पीटीआर को हम एक स्टेप पहले ही रोकने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू चेक पीटीआर नेक्स्ट डेटा। पीटीआर नेक्स्ट डेटा, जब तक वो एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं मिलता लूप चलाओ। मेक श्योर पीटीआर का नेक्स्ट नल ना हो एंड सिंपली अपडेट योर पीटीआर। सो वो लूप चलेगा चलेगा चलेगा, वो रुकेगा कहीं ना कहीं तो रुकेगा। उसके बाद आप चेक करोगे कि वो क्यों रुक गया, क्या वैल्यू मिली इसलिए रुका या फिर वैल्यू नहीं मिली। सो इफ पीटीआर नेक्स्ट इज नल तो वैल्यू नॉट फाउंड। बट अगर पीटीआर नेक्स्ट नल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रुके हो जो पीटीआर ऐसे नोड को पॉइंट करेगा जो आप डिलीट करना चाहते हो। यू वांट टू डिलीट पीटीआर, तो उसके आगे वाले नोड के नेक्स्ट को
पीछे वाले नोड के प्रीवियस को अपडेट करो, सेम स्टेटमेंट दैट वी हैव सीन अर्लियर, दोनों स्टेटमेंट सेम है। पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट को अपडेट करो पीटीआर के नेक्स्ट से, और पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस को अपडेट करो पीटीआर के प्रीवियस से, and that completes your process delete before. Have a look at this part one more time. Try to understand these two pointer updation. इसको समझने की try करो. This is important. Yeah. So, any queries or questions till now? If you are clear with this one, तो delete after तो आप आसानी से कर पाओगे. पीटीआर वहां रुकेगा जहां पे वैल्यू है, उसके नेक्स्ट में जो नोड है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो पीटीआर नेक्स्ट को भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में ले लो, डेल, जिसको आप फ्री करोगे, तो डेल के नेक्स्ट के प्रीवियस को अपडेट करना है. दैट विल बी इजी if you draw your linked list. Believe me when I say practice is needed here, it's not a job. अगर practice नहीं करोगे then I'm damn sure you will not be able to solve any of the given problems for linked list. And please don't compare your level with mine. आप सोच रहे हो कि सर आप तो कितना जल्दी जल्दी बोलते जाते हो, करते जाते हो. How do you think? Well, this is nothing but a practice of 10 years of teaching only, not learning. But this is one example where you can read if you practice. Yes. On a new node, you do the malloc. C program में आप malloc करते हो, जबकि algorithm में हम avail लिखते हैं. But when you do malloc statement, operating system is going to give you the memory. It is going to allocate you a memory. अगर memory allocate हुई तो उसका address मिलेगा. अगर memory allocate नहीं होती है तो null return होगा.
इन दैट केस यू आर सेइंग क्या मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल देना पड़ेगा या नहीं, दैट्स योर चॉइस. हाँ. अगर बड़ा प्रोग्राम है तो वो ऑलरेडी बड़ी मेमोरी लेके बैठा होगा, उसमें एक वेरिएबल ले लो जो एड्रेस है. एड्रेस को कितनी मेमोरी चाहिए? अनसाइन इंटीजर. अगर आप ऑलरेडी 100 MB लेके बैठे हो तो 8 बाइट मैटर करता है. नाउ थिंक अबाउट इट. डिपेंड्स कि आप अपने कोड को कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो या कोड को सिंपल रखना चाहते हो विद माइनर इंक्रीज ऑफ मेमोरी. इट डिपेंड्स. हाँ, लेकिन विद इन दिस प्रोसेस अगर हर एक जगह पे आप ये थिंकिंग रखोगे कि एंड बाइट कुछ मैटर नहीं करेगा, हर एक जगह पे अगर आप ये थिंकिंग रखते हो कि 8 बाइट डजंट मैटर, 8 बाइट डजंट मैटर, 8 बाइट डजंट, तो वो 8 8 8 8 8 करके बड़ा हो जाएगा. राइट. सो दैट डिपेंड्स कि अगर एक छोटे से छोटी एक प्रोसीजर है और उसके अंदर टेम्पररी वेरिएबल लिया जो वो प्रोसीजर खत्म होने के बाद निकल जाएगा तो चलेगा. बिकॉज वंस यू आर डन विद दिस प्रोसेस योर मेमोरी विल बिकम फ्री, क्योंकि आपने जो फंक्शन बनाया है फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल लेते हो तो वो लोकल वेरिएबल फ्री हो जाएगा जब वो फंक्शन खत्म हो गया तो चलेगा. बट इफ यू डिक्लेयर दीज काइंड ऑफ टेम्पररी वेरिएबल्स ग्लोबली तो वो आपका सॉफ्टवेयर जब तक चल रहा है तब तक मेमोरी रोक के बैठेगा. So that's not feasible. Okay, so that was delete before. I believe delete after you can do it. Number of cases are if start is null, nothing to delete. अगर start का data ही existing value है तो आप किसको delete करोगे? Next of start, which is second node. So डिलीट आफ्टर में ऐसा कोई केस नहीं बनेगा जहां पे आप पहले नोड को डिलीट करो. देयर इज नो वे यू डिलीट फर्स्ट नोड. तो स्टार्ट अपडेट भी नहीं होगा तो वो अलग से केस हैंडल करने की जरूरत भी नहीं है. वी सिंपली गो फॉर ट्रावर्सल प्रोसेस. हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रावर्स करेंगे. अब ट्रावर्सल प्रोसेस पहले नोड पे रुके या कोई भी एक नोड पे रुके डजंट मैटर, क्योंकि हमें उसका नेक्स्ट डिलीट करना है. एक स्पेशल केस बनेगा अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू लास्ट नोड पे मिलती है देन व्हाट. लेकिन वो कब पता चलेगा? जब आप ट्रावर्सल प्रोसेस पे रुकोगे. सो दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड. एक्सक्यूज मी. सो यू आर गोइंग टू ट्रावर्स फर्स्ट एंड व्हेन यू स्टॉप योर ट्रावर्सल प्रोसेस देन आप ये देखोगे कि अगर पीटीआर नल हो गया तो वैल्यू नॉट फाउंड. अगर पीटीआर का नेक्स्ट नल है देन देयर इज नथिंग टू डिलीट, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं. नाउ दैट्स द केस वी हैंडल आफ्टर ट्रावर्सल. और अगर पीटीआर नेक्स्ट नल नहीं है तो आपको कुछ मिला जो आप डिलीट करोगे. नाउ टू डिलीट इट लेट्स टेक पीटीआर नेक्स्ट इन डेल. एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो डेल जिसमें आप पीटीआर का नेक्स्ट डालोगे विच एक्चुअली यू वांट टू डिलीट. अब आपके पास पीटीआर है, आपके पास डेल है. डेल को आप डिलीट करना चाहते हो तो कौन कौन से पॉइंटर्स अपडेट होंगे? Your TR is pointing to a value, existing value. और उसके बाद जो कुछ भी है आप उसको डिलीट करना चाहते हो. You have taken PTR next in Dell and you want to delete that thing. इस केस में क्या होगा? TR का नेक्स्ट अपडेट करो
डेल के नेक्स्ट से, और डेल का नेक्स्ट जो भी है उसका प्रीवियस अपडेट करो टीआर से। अब वहां पे एक और कंडीशन बनेगी, जिस नोड को डिलीट करते हो उसका नेक्स्ट है या नहीं है। अगर है तो उसका प्रीवियस अपडेट होगा, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट यू डू इज, आपका पीटीआर तो वहां पे रुका जहां पे आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू मिली, मतलब पीटीआर का नेक्स्ट डेफिनेटली अपडेट होगा डेल के नेक्स्ट से। अब जिसको डिलीट कर रहे हो उसका नेक्स्ट नोड, मतलब डेल का नेक्स्ट नोड जो भी है उसके प्रीवियस को आप पीटीआर पे लेके आओगे, बट दिस लाइन should be under if else. If del next is not null, तभी आपको उसका previous मिलेगा, वरना वो मिलने वाला ही नहीं। And then you simply make your del free and exit. Now this extra condition अगर प्रोग्राम बनाते हो then must, otherwise आपको रन टाइम एरर आएगा। अगर एल्गोरिथम लिखते हो तो इतना चलेगा, these are the pointers we need to maintain, it's okay. In algorithm, if you write that if condition, no one is going to cut your marks, or no one is going to make false of your algorithm. It is foolproof solution. But that's the delete after. So we'll stop here for today actually. The next point is circular doubly linked list. Just like singly circular, you have doubly circular. And in the next lecture, we are going to see doubly circular कैसे बनता है, क्या होता है, and we will see two insert operation, two delete operation. Insert first, insert last, delete first, delete last. Circular manner में बीच में जो भी करते हो, similarly to the normal linked list. Well, so that's all for today. Thank you everyone for being part of this session. Hopefully in next lecture we complete doubly circular as well as this entire unit. Thank you.